लाइव है सर। Okay. Jai Hind. Brigadier Hemant Mahajan welcomes you to another session of Swatantra Veer Savarkar Rashtriya Smarak's various topics on national security. Today, we are going to talk on a very important issue, that is Olympics 2021, India's performance in that, Khelo India program, which our government has launched since a lot of time, and the effect or the use of sports in nation building. These are the 3-4 topics on which we are going to focus. And to talk to me on this very important issue, I have today with me Major General A.K. Chaturvedi, an officer who's put in nearly 38 years of service in the Indian Army, and is an officer from the engineer branch of the Indian Army. When we talk of his biodata, when we about his biodata very briefly, it emerges that he is a highly qualified in terms of technical qualifications. He's done his BTech, he's done his MTech in IIT, he's done his Masters, he's done his MPhil. And not only that, he's a sportsman of a very highest order. Being an officer from the engineers, he served on all the borders of India and Pakistan and China, and has taken part in various operations which Indian Army has fought since 1974. And today, what we are going to focus on is he is an outstanding sportsman. He's been a qualified coach. He's taken part in national level competitions in rowing, etc. So not only he is very good in the strategic aspects, in aspect related to national security, but he's an equally good sportsman and an equally good coach. In fact, what I will do is, since his biodata and his qualifications are very long, I'll put the biodata on the page itself so that you will understand as to how qualified is he to speak on these important issues. So what we'll start off our talk. I would, of course, welcome Major General A.K. Chaturvedi to this show of ours. And I will very briefly introduce the topic to you once again. We will, in the first part, talk about India's performance in the Olympics today. Today, we have a good news. The Indian hockey team, after I think nearly 41 years, has won a gold medal. Then we have 3 individual, I stand corrected, we have won a bronze medal after 41 years. Then we have already won 3 bronze medals, 3 outstanding ladies of ours, PV Sindhu, Mirabai Chanu, and the boxer. In addition to that, one of our wrestlers, Daya, has entered the finals. So he is definitely assured of a silver medal. And if I remember it correctly,
our women's team, women's hockey team, is also going to fight for the bronze medal today with Great Britain. So it's a reasonable achievement, though not let's say proportional to the achievements of, let's say, USA, China. And I would want to definitely compare it with China, because China and Pakistan are our enemy number one, and we should benchmark ourselves against the world powers in sports and see as to where do we stand. And more important, or most important, is how do we ensure that we improve our performance, because we are convinced, we have seen it in the Indian Army, that if you are a good sportsman, you are a good soldier also. If you are a good sportsman, whichever field you ultimately join, you will produce world-class results, and the nation will definitely benefit. So I take this opportunity to welcome General Chaturvedi. And General Chaturvedi, sir, just make your appearance. And the first question that I would put on to him is the performance of India. Firstly, let us talk about hockey, both men as well as women. What do you think were the reasons as to why they succeeded? They had not succeeded up till now for last 41 years. And the reasons for success of PV Sindhu, Mirabai Chanu, and of course the boxer. Over to you, General Chaturvedi, for your brief comments on our success, both in team events as well as certain individual sportsmen. General Chaturvedi. Thank you for a very illustrious. Mm, I'm thankful to Heman for inviting me for this program, and it's an honor and privilege to be part of your program. Now, as far as this performance is concerned, there are many aspects of it. First and foremost is that we must see that Indian hockey team, after winning their first match, they lost terribly against Australia 1-7. That was to bring the morale of any team down. But the way they rose thereafter, and they continue to rise even today, they were down 3-1, and yet they won 5-4, which shows a tremendous amount of character, tremendous amount of teamwork, tremendous amount of fitness, and above all, a very, very good strategy, which says it all, that never quit till last whistle is blown. Similar is the case of women's hockey. Women's hockey, we lost first two matches, and it is only when we defeated Ireland and thereafter we defeated South Africa that we reached semi-finals, and there we defeated one of the fancy team, that is Australia 1-2, which had never happened. They were hoping for a goal, and this only again shows that team had a fire in them, and team was determined to do well. Now, the first few things which emerge. One is that will to do well by the athletes. Second is a very good coaching, a coaching which prepares you for all eventualities. Third is character. Character comes when you start working under duress, under stress, and you work together. The team builds up, and team building is a very, very important aspect. And this is one thing which every sports can take from armed forces, where from day one we are taught to be part of a team rather than individual. And history is replete with the examples when we individual valor we tried, we didn't succeed. But when we together we worked and we succeeded. Similar is the case. I mean, even today's team, if somebody asks in hockey team, you can name 5 people. No, it didn't. We won't be able to name 5. But as a team, they worked. Now, another aspect is the support. If you notice, this Khelo India is a very, very, 2016 it was introduced and it worked wonders. The sports budget which has increased. So all these things, there are many other things, but I think it will emerge in later part of the questions. Now, as far as others are concerned, it is like PV Sindhu, let's take. She was known to be a choker. Last time she choked. But this time she worked, and when she was down, and yet she won. And that is what is the character building. Mirabai Chanu, a very, very humble background, and same is the Lavalina Bargoin, and they came up. Ravi Dahiya, today we saw, he lost only 7-4. So he went down fighting. It's not that he just like, so till the end they kept fighting.
Even Deepak Punia, who lost today, he was ahead 2-1. And at the technical point, maybe the mental build-up is more required. Yes, thanks a lot for your opening comments. Now, what I would ask you here is, General Chaturvedi sir, Yes. what I would ask you here is PV Sindhu was an outstanding athlete and she's been in the top world 5 for last almost 7 or 8 years, but she was choking at the important competitions. But today I would like to point out one aspect of PV Sindhu and I would want you to comment on that. That today India has produced, to my mind, a world-class coach in Pulaya Gopichand. Gopichand was not only an outstanding badminton player, but he's created a system, Gopichand Academy, and he's been a national coach of the badminton team. And the kind of progress, kind of strides that we have made in badminton today are comparable with best in the world, be it Saina Nehwal, be it PV Sindhu, be it Shrikant and Parupalli Kashyap and all. The list is endless. And not only that, in addition to this, today there are at least about 100 odd younger generation of sportsmen who are preparing, and hopefully in a short while you will also hear them as frequently as you hear the names of PV Sindhu and all. So I would want you to talk about Indian coaches. You have been an outstanding coach yourself. What is that that differentiates Indian coaches from coaches compared to rest of the world? Today, if you see the football, all our coaches are foreign. Today, you see hockey, our coaches are again from outside the country. So what will make the Indian coaches world class? Because coaching is a very important aspect of any sports. So how do we improve coaching standards in India? And Gopichand had himself said that if India wants to rise to the level of China and all, we need to produce not only world-class sportsmen, but we need to produce world-class coaches also. So your comments on how do we improve coaching, and then we'll talk about the other systematic support that sports has to have to improve. General Chaturvedi. The coaching is a very, very comprehensive reflection. One is the skills, which say somebody like Pulela Gopichand or Bimal Kumar, they have done a terrific job in India, that they can impart a good, and that's why they are very good basic coaches. And Pulela Gopichand himself went all England. Now, the second aspect is Sai aspect. Saina Nehwal also at some point of time felt that she was outgrown Pulela Gopichand, so she went to Bimal Kumar. It didn't work, she came back. But probably that time funding was not so good. Now, because of this National Sports Fund, which is there's a system which has been created in 1998 onwards, and that is what you can hire a coach. So PV Sindhu felt that she is kind of outgrown Pulela Gopichand, so she went to this South Korean coach. Now, this flags few things. One is, in coaching, one of the most important aspects is the Sai builder. Today we spoke just now about the hockey team and all those things. And I'll give you a case study important. 82, Indian hockey team was better than Pakistan team, but we terribly lost because we did not have psychological build-up, team melted away. And so that is the psychological aspect. Second is conditioning. You know, today this hockey, football, and all these games, they are not skill based. Dhyanchand, if he had been today, he would have been a failure because he was a wizard with a stick. But today it is not wizardly with a stick. It is that you can sustain for 70 minutes on AstroTurf. It's not grass. So you got to have different kind of, because the thing is, in all these federations world over, they have got the majority. So they keep changing the rules as per their convenience. So these are the things we have to play by the way it is. So third is very, very important aspect is conditioning. And fourth aspect is nutrition. Nutrition makes total difference. The same thing which you can do, and say Ramanathan Krishnan could reach only up to semi-finals because Italy Summer can take you only up to that point. You got to have a different kind of a diet, a different kind of a. So all these things when they put together. So today, if you recall, Martina Navratilova, one sportsman, first sports person who had a total support system, and that is how it came. So now today, there's a coach who tells you about the training methods,
a coach who's built you psychology, a third coach who's, and there's an overall team, there's an organization. So that is what is important aspect in any kind of a coaching. I'll tell you a very interesting thing. There's something called biomechanics, that how your body responds when you take the stick forward, how much should you bend forward, where should you hold, and how should your grip, how do you improve your grip. So all these things, the biomechanics is a very, very important aspect. So when you build all these things into one, if you see today's hockey team, it is not a product of one day. There was a time when in what we did not even qualify in some of the Olympics, but we kept on building, and today we are number 4, and in Olympic we are number 3 now. So therefore, it takes long time to build up, and for that, organizational support is very essential. Hockey India has done a good job in this case, and that's how foreign coaches still are relevant. But we have got a very outstanding institution in NIS Patiala, which is giving MSc, PhD, and everything. But it will take some time for us to become world-class coaches. Cricket, we have achieved that stage, but in other sports, we have to still make up. Cricket. सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने एक जनरल चतुर्वेदी सर, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी सामने रखा है। चतुर्वेदी सर, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा सामने रखा हुआ है कि ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनको अगर आपने वर्ल्ड क्लास बनाना है तो एक पूरी सिस्टम आपको क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके अंदर आपने न्यूट्रिशन के रोल के बारे में बात की, जिसमें आपने जो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके बारे में बात की, जो फिजिकल ट्रेनर्स होते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, थोड़ी उनकी जरूरत है। अगर आप अभी कुछ देर पहले विंबलडन हुआ था, जहां पे जोकोविच जो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है टेनिस के, उन्होंने ये मैच जीती थी, और अगर आप उनका इतिहास देखें तो पूरी मेरे ख्याल से 12 साल से वो वर्ल्ड लेवल पे है, और उनके टीम में फिजियोथेरेपिस्ट है, उनके टीम में साइकोलॉजिस्ट है, उनके टीम में कोच है, उनके टीम में जो टैक्टिक्स हर एक पॉइंट के लिए जो अलग अलग करनी है वो है, उनके टीम में मतलब ये एक वीडियोग्राफर है जो उनके जो लाइकली अपोनेंट्स है उनकी पूरी मूवमेंट्स को मतलब वीडियोग्राफ करता है, उनकी कमजोरियां क्या है उसकी एनालिसिस की जाती है, क्योंकि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है वो क्या करता है ये सब दुनिया को पता होता है। तो इसलिए हर एक मैच में हर एक पॉइंट के ऊपर उसको अलग अलग प्रकार की टैक्टिक्स ये इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसलिए ये टीम जो पूरी जो टीम एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन को मदद करती है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे इसके बारे में दो विषयों के ऊपर आपसे थोड़े से कमेंट्स मांगूंगा। एक तो इसलिए कि हम आर्मी में है, मैं सोचता हूं कि पुणे में एक आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट नाम की एक इंस्टीट्यूट है, जिसके बारे में तो आपको पता ही होगा, और आपको ये भी पता है कि इंडियन आर्मी के अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग नोड है, जिसका जो नोड रोइंग का है उसमें तो आप सीएमई कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में आप खुद थे, लेकिन आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन के बारे में ये बोला जाता है कि आज वहां पे 200-250 इंटरनेशनल क्लास स्पोर्ट्समैन है आर्मी के, और उन्हें कोचिंग दिया जाता है इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। तो एएसआई जो है उनके जो इंस्टीट्यूशन है जहां पे ये पूरी इंस्टीट्यूशन सपोर्ट होती है, उसके बारे में कुछ आपकी कमेंट्स, फिर हमारी जो आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग है उसके बारे में आपके कुछ कमेंट्स, इसके सिवाय जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है थोड़ी उसके बारे में आपकी कमेंट्स, और इसके सिवाय आर्मी में आपको पता है कि हमने बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी बनाई हुई है, जहां पे हम बच्चों को यंग एज में कैच करके उनको आगे सुपर स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते हैं। तो ये जो जर्नी 10-15 साल पहले शुरू हुआ था उसकी प्रोग्रेस कैसे हुई है, तो आपकी कमेंट्स अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, आर्मी एएसपीटी जो पुणे में है, इसके सिवाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपकी जो कोचिंग नोड जो सीएमई में है, और इतर इंडिया की जो स्पोर्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में। जनरल चतुर्वेदी। हाँ हेमंत जी, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट था बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी से ग्रोथ आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट तक और उसके बाद नेशनल लेवल पे, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो कोच, आज आप देखिए कि जो आज बाहर क्योंकि पैसा बहुत बाहर से आ रहा है बाकी स्पोर्ट्स में,
तो शूटिंग वगैरह में बाहर के लोग भी आने लगे, वरना एक टाइम था कि शूटिंग है, आर्चरी है, रोइंग है, इसमें टोटल डोमिनेशन डिफेंस सर्विसेज का था। कारण क्या है कि हम लोग अपने लड़कों को राइट फ्रॉम बिगिनिंग ट्रेनिंग देते हैं, और इसमें एक आवश्यकता है कि चाइना और सोवियत का ये मॉडल था, सोवियत यूनियन का, कि बच्चा जब पैदा होता था उसके हाथ का कुछ वो एक्सरे लेते थे और तलवे का एक्सरे लेते थे, उससे उसकी ग्रोथ पहचानते थे। हार्ट वेंटिलेशन एक ऐसी चीज होती है जो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन बाकी सब कुछ चीजें आप ट्रेनिंग से इंप्रूव कर सकते हो। तो देख लेते थे कि अगर उसका ग्रोथ है, तो उसका हार्ट वेंटिलेशन है, तो उसको ट्रेनिंग में लगाते थे और धीमे धीमे करके उसको ग्रो करते थे। तो ये चीज जो है, इस सिलसिले में आर्मी स्पोर्ट्स कंपनीज का बहुत महत्व है। और आपको मैं बताऊं कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन इससे निकले। रोइंग में आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्समैन थे, बॉय स्पोर्ट्स कंपनीज हैं। हॉकी में ऐसे बहुत सारे हैं जो कि स्पोर्ट्स कंपनीज से निकल के आए हैं। जिम्नास्टिक्स में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और जो इसके बाद यहाँ से जो एक जर्नी शुरू होती है, और इसके बाद जब ये आगे जाते हैं, ये फाइनल इनका डेस्टिनेशन होता है, वो होता है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। लेकिन एक चीज जो इसमें हमारे सिस्टम में जो और दो चीजें इंप्रूव होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सिलेक्शन ये स्पोर्ट साइंस के बेसिस पे ही है। और जिसमें कि आपने जैसे एएसपीटी का नाम लिया, एएसपीटी में उनकी एक पूरी स्पोर्ट्स मेडिसिन का सेंटर है उसके साथ। अब वो सेंटर जो है एएसआई में भी है, वो सेंटर कुछ सेंटर्स में भी है, जैसे बंगाल सैफर सेंटर में भी है, एएमसी सेंटर लखनऊ में भी है, कई जगहों पे है। और ये नंबर ऑफ डॉक्टर्स ट्रेन हो रहे हैं। आज आपको बड़ी खुशी होगी ये जान के कि भारतवर्ष में करीब 568 ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं, 10 एकेडमी है। तो इन सब से जो निकल के आ रहे हैं लड़के, वो थोड़े से ज्यादा, और जो कोच है वो जो है बहुत अच्छे आने चाहिए। दूसरा, कोचिंग में कंटिन्यूटी की बहुत जरूरत है, कंटिन्यूटी एंड ग्रेडेशन। एक ग्रेड का कोच होगा, वो आपको बेसिक, आप बोलो कि आर्चरेकर ही अगर आपको सचिन तेंदुलकर को आखिर तक सिखाता तो ऐसा नहीं हो सकता था। एक लेवल तक वो लाया, उसके बाद कोई दूसरा कोच आया, एक लेवल ऐसा आ गया कि सचिन तेंदुलकर को कोच की जरूरत थी, वो अपने कोच खुद ही हो गए। तो ये चीज जो होती है, ये एथलीट्स में ऐसे ग्रो करने की एक क्षमता होती है, और ये जो है धीमे धीमे करके ग्रो होता है। एंड ये इसमें जो बहुत आवश्यक है कि जो इंडिया आर्मी का एक मिशन ओलंपिक शुरू हुआ था, वो उसने बहुत अच्छा काम किया, उसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। ये आर्मी स्पोर्ट्स नोड है, जैसे सीएमई। आप देखिए कि आज की तारीख में आर्मी ने जो किया है, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। जो एक आपके पूना में ही जो आर्मी नोड में उन्होंने एक वाटर चैनल बनाया है, इंडिया में अकेला वाटर चैनल है वो, और वो वर्ल्ड क्लास है। सेलिंग का नोट जो हमारा बॉम्बे में है, वो वर्ल्ड क्लास है। तो ये चीजें इस तरीके से जो होती हैं, या शूटिंग का जो आपका मऊ में है, वो वर्ल्ड क्लास है। एएसआई आपका वर्ल्ड क्लास है। ये आज भारतवर्ष में 100 ऐसी इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात है कि एक तो ये एलीट स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग है, इसके साथ एक बेसिक ट्रेनिंग जो हमारी आर्मी में होती है, कि बच्चा जब वो रिक्रूट आता है, वहीं से उसको कोई बास्केटबॉल, कोई फुटबॉल, उसकी नेचुरल एबिलिटी को देख के उसके सीओ साहब उसको उसमें कर देते हैं। एंड देखते हैं अगर लड़का फिट है तो धीमे धीमे करके वो सीख जाता है। और अगर उसमें, क्योंकि हमारे अपने टैलेंट हमको खुद नहीं पता है, वो आगे ग्रो करते जाते हैं और वो उसी से बढ़ते जाते हैं। एंड जो ये कैरेक्टर बिल्डिंग होती है इसमें, कि एडवर्सिटी के अगेंस्ट काम करने की, ये बहुत ही उनको हेल्प करती है आगे चल के वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स बनने में। आप इसीलिए आज भी देखिए, रोइंग जैसा स्पोर्ट, आपको यकीन नहीं होगा कि 6 मिनट के बाद जब रेस खत्म होती है, तो उस वक्त उसको दिखना भी बंद हो जाता है, उसकी पल्स रेट 200 से ऊपर पहुंच जाती है, उसको कुछ नहीं दिख रहा होता। एंड दैट इज द टाइम कि हार नहीं मानूंगा टाइप एटीट्यूड होना चाहिए, नेवर क्विट, नहीं छोड़ने वाली एटीट्यूड। शायद आपकी जो आवाज है चतुर्वेदी सर, हाँ, आपकी आवाज थोड़ी अभी बीच में कम हो गई थी, शायद नेट की प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। आप जिस विषय के ऊपर बात कर रहे थे, मैं आपसे अब इस पे एक ये पूछना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स मेडिसिन के बारे में बात की। मुझे याद है कि पुराना जमाना था जब कर्नल डिक्रूज वगैरह जो लोग थे वो स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने की बिल्कुल साइंटिफिक मेथड्स इवॉल्व की थी, जो उन्होंने शायद जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, रशिया वगैरह से ली थी, और उसे शायद आगे भी अपग्रेड किया था, जिससे वो ये चुनते थे कि कौन सा स्पोर्ट्समैन किस गेम के अंदर ज्यादा अच्छा खेलेगा।
तो इसमें आपके थोड़े कमेंट चाहूंगा इस विषय के ऊपर। अगर आप हमारे इंडियन आर्मी की तरफ देखते हैं तो आपको नजर आता है कि अगर आप बात करें हॉकी की, तो ये जो सिख या पंजाब वाले जो होते हैं वो अच्छा हॉकी खेलते हैं। जब कुश्ती की बात होती है तो जिस रेजिमेंट से मैं हूँ, मराठा रेजिमेंट, वो कुश्ती में, और जाट रेजिमेंट इसमें अच्छी होती है। बॉक्सिंग की बात करें तो अच्छे बॉक्सर्स हमारे मणिपुर से आते हैं या थोड़े बहुत आते हैं अपना गुरखा बॉक्सर्स वगैरह भी अच्छे होते हैं। यानी कि हमारे कुछ रीजनल कैपेबिलिटीज है। और आपने बात की अभी शूटिंग और आर्चरी की, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा जिस प्रोग्राम के ऊपर आप आज आप है, स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक, यहाँ पर भी एक शूटिंग रेंज है। अगर कभी आप मुंबई आएंगे तो आपको जरूर नजर आएगा। और यहाँ पे कुछ इंडिया क्लास स्पोर्ट्समैन भी तैयार हुए हैं। शोभा शिरूर वगैरह आपने नाम सुना होगा। तो मैं आपसे अब ये कमेंट चाहूंगा कि स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट करने के लिए अगर हम हर एक रीजन की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करें, और उस रीजन में समझ लीजिए स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो मणिपुर में है वो बॉक्सर्स को या फुटबॉल को डेवलप करेगी, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट समझ लीजिए वो पंजाब में है तो हॉकी के ऊपर वो ज्यादा जोर डालेगी। अगर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट समझ लीजिए साउथ में है तो वहां पे स्प्रिंटिंग वगैरह एबिलिटी अच्छी होती है तो उस पे ये डालेगी। तो क्या ये जीन्स का इस्तेमाल, रीजन वाइज स्पोर्ट्समैन को डेवलप करना, क्या हमें ये एक्सीलेंस की तरफ ले जा सकता है कि नहीं? इसके ऊपर आपकी कमेंट्स। बिल्कुल। मैं दो तीन चीजें इसमें बताऊंगा। पहले आपने जो जनरल क्रूज की बात की, सीए क्रूज, वो मेरे भी डॉक्टर थे, 1990 एशियन गेम्स में मेरे साथ गए थे। एक ही चीज इसमें थी, उस वक्त हम लोग इतने तेज नहीं थे, तो हम स्पोर्ट्स मेडिसिन वाला अपने आप को कोच समझने लगा। कोचिंग और सिलेक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। जो स्पोर्ट्स मेडिसिन वाला है वो आपकी जो कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है या जो आपकी फिजिकल फिटनेस है उसको इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ अच्छे स्पोर्ट्समैन निकाले, कुछ उनको अच्छे स्पोर्ट्समैन वो एकदम खराब हो गए थे एसपीटी में। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो उन्होंने कोई भाईबंदी की थी, क्योंकि वो कोच नहीं थे। वो कोच नहीं थे, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं और वो अपने फन के एकदम माहिर हैं। तो एक तो ये चीज मैं बताना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए, और अगर कोई स्पोर्ट्स इंजरी होती है उसको ठीक करने के लिए। इसके अलावा जो जो इसी के उनसे उसके अंडर में एक सबसेट है, वो है फिटनेस। फिटनेस वाले जो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, जो मिस्योर्स होते हैं, वो उनके अंडर में जब काम करते हैं तो आपकी मसल्स वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो आपने जो क्षेत्रीय बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये साई का पूरा इसमें इसके ऊपर पूरा जोर है। अगर आप देखिए जो साई के सेंटर्स हैं वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषयों पे काम करते हैं। जैसे आपने बताया कि साउथ इंडिया में वो बहुत अच्छे स्प्रिंट्स में होते हैं, तो केरला में वो जो सेंटर है वो स्प्रिंट्स पे काम करता है या वाटर स्पोर्ट्स पे काम करता है। जो पूना में है, जैसा हम सब जानते हैं कि पहला जो 1900 के जो नॉर्मन प्रिचर्ड ने एक दो मेडल जीते थे, उसके बाद जो पहला इंडिविजुअल मेडल था वो केडी यादव ने जीता है 1952 में। वो महाराष्ट्र था, क्योंकि कुश्ती, खो खो, कबड्डी ये महाराष्ट्र के गेम है। तो इसमें अगर हम महाराष्ट्रियंस को इन्वॉल्व करेंगे, और इसी के साथ साथ इसका एक ऑफशूट है वो जिम्नास्टिक्स है। अगर जिम्नास्टिक्स में भी महाराष्ट्रियंस को मिलाया जाएगा, या कुछ आदिवासियों को जो छोटे साइज के होते हैं जैसे कि कर्माकर वगैरह, दीपक कर्माकर वगैरह थे, तो इनको अगर आप करोगे तो वो अच्छा होगा ना। जहाँ तक पंजाब और एक और एरिया है झारखंड, जहाँ की बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर निकलते हैं, क्योंकि ये लोग जो है ये शुरू से ही इनका हॉकी इनका गेम रहा है। तो पंजाब और वहाँ से हरियाणा महाराष्ट्र कुश्ती, तो ये चीजें जो है। लेकिन इसमें एक गौर करने वाली बात ये है कि जो इस तरह से निकलते हैं, इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट, इनको एक ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट, इनको एक मेडिकल सपोर्ट बहुत जरूरी है। फिर वो सुशील कुमार जैसी सिचुएशन ना आ जाए कि छतसाल स्टेडियम का वो डॉन बन गया और उसने सबको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। चाइना में ये चीज मैंने देखा था, फंडिंग। आप ये गौर करोगे कि जब ये CWG गेम्स हुआ था तो हमने करीब 3000 करोड़ खर्चा किया। उसका नतीजा कहाँ मिला? लंदन ओलंपिक्स में कि हमको 6 मेडल मिले थे, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। इस बार हम लोगों ने, क्योंकि उसके बाद जो खेलो इंडिया 16 से शुरू हुआ है, उसका नतीजा इस बार मिल रहा है और नए स्पोर्ट्स में हम लोगों को आगे आ रहे हैं।
लेकिन साथ ही जो है जो साइकोलॉजिकल बिट, जैसे कि आप देखिए, चाहे वो सौरभ चौधरी हो, चाहे वो जो दूसरी वो लड़की है, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, जो आर्चरी में जो अब किसी नहीं अच्छा कर पाई, जो कि वर्ल्ड चैंपियन भी है, नंबर 1 है। दीपिका दीपिका हाँ, कुमारी। दीपिका कुमारी। सो ये चीजें जो है, ये क्योंकि ओलंपिक गेम्स बिल्कुल एक डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर है, लोगों को एक डिफरेंट तरह का एटीट्यूड लाना पड़ता है। अच्छा, दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अब की से निकल के आई है, कोच और जो ट्रेनी है उसके बीच का सामंजस्य। आप देखिए, अब किसी शूटिंग में हमको कोई मेडल नहीं मिला, क्योंकि जसपाल राणा जो अपने जमाने में एक अच्छे शूटर थे, लेकिन उनका और उनके जो वार्ड्स के बीच में कोई तारतम्य नहीं है, मतलब वो शायद टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है। तो ऐसा कोच से क्या फायदा? जो मनु भाकर का कल इंटरव्यू अगर आप देखते, तो उनमें आपस में कोई, या आपको वो दंगल पिक्चर की याद होगी कि वो लड़की की जो कैपेबिलिटी थी वो ऑफेंसिव थी, लेकिन कोच जो था उसको डिफेंसिव सिखा रहा था, क्योंकि उसको वही वो सोच रहा था कि प्लेस मिल जाए, ब्रॉन्ज मिल जाए, लेकिन वो लड़की दूसरी कैपेबिलिटी वाली थी। हालांकि वो पिक्चर है, लेकिन दैट इज वेरी ट्रू। हर स्पोर्ट्समैन का एक अपना एटीट्यूड होता है, उसको जो चैनलाइज अगर हम कर सकें, तो वो सबसे बड़ी, वो जो होगी कंटिन्यूटी कोचिंग से आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर क्षेत्रीय, जैसे आपके मणिपुर है, मणिपुर में भी जो इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, उसकी वजह से बॉक्सिंग, उसकी वजह से वेट लिफ्टिंग, ये कनूइंग, कयाकिंग, ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो रही है। आप देखिए कि हॉकी में पहले संसारपुर वाले सब सारे लड़के थे पंजाब के, लेकिन अभी दूसरी जगहों से भी आ रहे हैं। तो ये चीज जो है, ये अगर अच्छा लड़कों को आप ले करके और इनका सिलेक्शन ब्रॉड बेस करोगे, खेलो इंडिया इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया, जिसकी वजह से जितना ब्रॉड बेस, क्योंकि अभी क्या है, फंडिंग सारी फेडरेशन को होती है, फेडरेशन से लीड स्पोर्ट्समैन तैयार करते हैं, जिससे कि आपका जो बेस है वो वीक होता है। आप आर्मी वगैरह को इन्वॉल्व करो, वंडर्स हो जाएंगे, क्योंकि आर्मी का जो बेस बहुत भारी है, बहुत भारी बेस है, आर्म फोर्सेस का ही तीनों का बहुत भारी बेस है, जिससे बड़ा फर्क पड़ता जनरल चतुर्वेदी सर, मैं आपसे एक और अलग विषय के ऊपर अभी ले जाना चाहता हूं आपको, एक कंप्लीटली अलग विषय। मैं आपको एक कंप्लीटली अलग विषय के ऊपर ले जाना चाहता हूं। है। हाँ, एक हम और ये चाहते हैं कि आपको पता है कि आप इसलिए के फौज में रहे हुए हैं, फौज में स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंस है, फौज में फिजिकल फिटनेस का इंपॉर्टेंस है। और आपको याद होगा कि जब से हमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग की थी, हमें कितनी सारी फिजिकल टेस्ट को पास करना पड़ता था। इसमें IPET टेस्ट होती थी, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होती थी, उसमें रनिंग था, उसमें जंपिंग था, स्पॉट रनिंग था, स्पॉट जंपिंग था, जंप एंड रीच था, 5 माइल्स था, 10 माइल्स था। और ये जो टेस्ट थी, मैं हमारे दर्शकों को इतना बताऊं कि ये आपकी फिजिकल फिटनेस चेक करती थी, आपकी एरोबिक कैपेसिटी चेक करती थी, आपका स्टैमिना, आपकी स्पीड, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी स्प्रिंटिंग एबिलिटी। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपका फिजिकल फिटनेस ठीक है, तो जो आपका काम है सोल्जरिंग का, वो आप ज्यादा अच्छा करते हैं। और आपको पता है कि इवन हम रिटायर होते समय भी BPT के फाइनल टेस्ट करके पास बाद में आए हुए हैं। तो मेरा सवाल अभी थोड़ा मैं अलग हूँ, फिजिकल फिटनेस का इम्पोर्टेंस, मेंटल फिटनेस का इम्पोर्टेंस आर्मी ने तो बहुत अच्छा मतलब अच्छी तरह से फॉलो किया है। तो क्या ये स्पोर्ट्स कल्चर हमारे कॉलेजेस के अंदर, हमारे स्कूल्स के अंदर, हमारे यूथ के अंदर डाल के, क्या हम उनके लिए भी कुछ फिजिकल फिटनेस के टेस्ट तैयार कर सकते हैं, जिससे वो अपने आप को खुद को बेंचमार्क कर सके कि उनकी जिस एज के ऊपर वो है, फिजिकल फिटनेस कितनी होनी चाहिए, कितनी है, अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, और क्या इससे नेशन बिल्डिंग होगा? क्योंकि ये तो उसमें से सब तो कोई फौज में नहीं आएगा ना, कोई ये सुपर स्पोर्ट्समैन बनेंगे, लेकिन जिस फील्ड के अंदर भी जाते हैं, क्या इस फील्ड के अंदर वो उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा? क्या वो वहां पे टीम स्पिरिट को पहचान पाएंगे? क्या वहां पे वो फाइटिंग स्पिरिट उनकी इंप्रूव होगी? तो स्पोर्ट्स बिल्डिंग और नेशन, इसके ऊपर अगर आप अपने विचार रखें है। तो ये बहुत बहुत अच्छा बहुत होगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है हेमंत जी। इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ, एक केस स्टडी से बताता हूँ। आप अगर गौर करो, अगर जब महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने, तो उन्होंने पहली बार ये किया कि पूरी टीम को कमांडो ट्रेनिंग कराई। अच्छा, इस ट्रेनिंग को कराने से 3-4 चीजें निकल के आती हैं। नंबर 1 ये कि आप अपने आप को औरों से ज्यादा पहचानने लगते हैं।
कि मैं इतना कर सकता हूँ। अगर अपना भी आप दिमाग अपना माइंड ले जाइए, जब हम लोग पहली बार आईएमए में गए थे और जब दिखाया गया कि रस्सा, तो थर्ड क्लास तो क्या मतलब हम लोग उसको पकड़ के ऊपर खींच भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि जो अगर नॉर्मल बैकग्राउंड से थे। लेकिन जब तक ट्रेनिंग हमारी खत्म हुई तो हम अपने आप में एक विश्वास पैदा हुआ, नंबर एक। नंबर दो, जो विश्वास का जो अगला आता है वो होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर से अगर बोलो तो ये लड़ने का एटीट्यूड की नेवर से डाई, वो एटीट्यूड अलग लगता है, क्योंकि अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है तो वो आप कर सकते हो, यस आई कैन, वो वाला जैसे अब उबाना ने बोला था वो वाली चीज आने लगी। तीसरा, आप टीम में काम करने की आदत आपको आने लगती है, क्योंकि आपको अगर देखिए, जो आपको याद होगा, आपने आपने भी बहुतों के राइफल पकड़ के उनको धक्का मारा होगा बीपीटी में, चल भाई चल चल 10 चल 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 ऐसे किया होगा। तो वो जो चीज होती है और उससे जो बोनहमी बनती है, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये चीजें अगर हम लोग अपने कैरिकुलम में डालेंगे, स्कूल के कैरिकुलम में भी, तो आप देखो कि पहले क्रिकेट क्या था, पौनी उमरीगर ग्रेट क्रिकेटर, विजय मांजरेकर ग्रेट क्रिकेटर, विजय हजारे नाम हम लोग सुनते थे, लेकिन वो मैच नहीं जीतते थे, क्योंकि वो इंडिविजुअल, अगर वो स्लिप पे खड़े हैं तो बगल से बॉल निकल गई तो निकल गई। या एक हॉकी में ऐसा समय आया जब 76 में हम लोग, बहुत बुरा हाल हुआ था हम लोगों का कनाडा में, वो उसका कारण सिर्फ यही था कि हमारी फिटनेस लेवल बहुत ही लो था। तो जब फिटनेस आने लगती थी एक दूसरे से, क्योंकि आप पास, इसमें आप वो चक दे इंडिया वाला याद करें, ले ये बॉल लौंडे को दिखा दे, जब वो लड़की कहती है, वो कोमल, वो बहुत ही बढ़िया डायलॉग है कि कैसे टीम बिल्ड हो रही है। तो जो जैसा हम लोग जानते हैं मैनेजमेंट में कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, तो जो परफॉर्मेंस होता है वो स्टॉर्मिंग के बाद नॉर्मिंग होती है, जब हम एक दूसरे की अच्छाई कमजोरी समझने लगते हैं, समझते हैं कि भाई इसको मेरी यहाँ जरूरत पड़ेगी, मुझे इसकी यहाँ जरूरत पड़ेगी। तो ये जो टीम बिल्डिंग है नेशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप थर्ड बैटल ऑफ पानीपत को अगर गौर याद करो, सदाशिव राव जो थे बड़े ग्रेट सोल्जर थे, लेकिन क्या हुआ कि जहां उनको विश्वास राव के मरने की उनको खबर मिली, वो दौड़ गए, तो वो खुद मारे गए, पूरी मराठा फौज को उन्होंने मरवा दिया। तो ये चीज जब जो अगर कोऑर्डिनेटेड होता, तो अब्दाली की क्या साली मजाल थी, चुट्टू सा था मराठा फौज के सामने। लेकिन क्योंकि हम लोग एक साथ, जो टीम बिल्ड होती है, ये स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा, दैट इज अगर आप गौर करो, याद करो, क्योंकि आप तो बहुत ही योग्य अवसर रहे हो और आपको भी ये मालूम है कि फौज में जो स्पोर्ट्स पे और पीटी पे बीपीटी पे दिया जाता है, उसमें मास पीटी। आपको एक मैं उदाहरण देता हूँ, 73 की वॉर के बाद एक बीसमान कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट था उनका कि मैस पीटी और मैस ड्रिल शुरू करो, क्योंकि इजराइल आर्मी ने वो बंद कर दी थी। तो इंडिविजुअल तो ग्लेडिएटर्स निकलने लगे थे, लेकिन टीम में काम करने वाले कम। आज भी जो हमने उसको जर्मनी को हराया, क्या एक प्लेयर का नाम भी हम बता सकते हैं? लेकिन दे आर वर्ल्ड क्लास टीम। ऑस्ट्रेलिया के कितने प्लेयर्स का नाम बता सकते? नहीं बता सकते, लेकिन दे आर, हो सकता है कल वो जीत भी जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कि टीम जब काम करती है तो देश जीत, तब वो टीम जीतती है। इंडिविजुअल एक्सीलेंस से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ भी एक से एक बड़े बड़े प्लेयर हुए, मोहम्मद शाहिद का नाम ले लो, इसका नाम ले लो, उसका नाम ले लो, लेकिन किसी ने कोई कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिविजुअल से नहीं होता। वही चीज फौज हमको सिखाती है, वही चीज स्कूल कॉलेजेस में अगर इंट्रोड्यूस की जाएगी तो ये जो बॉनहमी है, क्योंकि आपको भी याद होगा, आपको वो सारे क्षण याद होंगे जो आपने कमांडो के टाइम में अपने दोस्तों के साथ किए होंगे, या चिंडिट्स के कैंप को याद करो कि उसमें जब हम लोग रास्ता भूल जाते थे कि वो शाकुमरी में चल रहे हैं, तो फिर साथ मिलके ही चलने से हम लोग आगे बढ़ते थे। तो ये चीजें जो है, ये टीम स्पिरिट जो है, ये एक डायरेक्ट आउटकम है। कॉन्फिडेंस, टीम स्पिरिट, दो चीजें डायरेक्ट आउटकम है ये स्पोर्ट्स के। जन चतुर्वेदी सर, अभी इसलिए कि थोड़ी समय की कमी है, मैं दो विषयों के ऊपर आपको ले जाना चाहूंगा और दोनों विषय के ऊपर आपसे मैं कमेंट्स पूछूंगा। एक तो खुद को अच्छा स्पोर्ट्समैन करने में इंडिविजुअल का क्या रोल है, या वो लाइफ में सक्सेस पाने में, या उसकी जो एक इंडिविजुअल की जो टीम होती है, जिसमें पेरेंट्स है, जिसमें टीचर है, जिसमें सोसाइटी है, वो उसको एक्सीलेंस अचीव करने में किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। और लास्ट में
आप ये बताइए कि अगर आपको कुछ 5 और मुद्दे दिए जाए कि भाई अगर इंडिया में हमारी खेलो इंडिया से या समझ लीजिए कि ये जो मिशन ओलंपिक है उसके मदद से या स्पोर्ट्स का कल्चर हमारे देश में लाने से अगर हम इंडिया को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो उसमें और 5 इंपॉर्टेंट मुद्दे आप क्या रेकमेंड करेंगे? तो सबसे पहले रोल ऑफ इंडिविजुअल, रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ सोसाइटी और उसके बाद इस देश को एक सुपर पावर बनाने में देश क्या 5 बड़े मुद्दे उठा सकता है? जनरल चर्चा के लिए। बहुत अच्छे सवाल हैं ये। पहला सवाल इंडिविजुअल, इंडिविजुअल में सबसे पहले अंदर फायर होनी चाहिए। अभी एक व्हाट्सएप पे घूम रहा है रानी रामपाल का कि किस तरीके से उसके पास स्टिक भी नहीं थी और उसने उसकी माँ के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन वो कैसे जगती थी। तो वो जो है एक उसके अंदर एक फायर थी, आग थी। मीराबाई चानू सेम केस। तो एक चीज अगर आपको इसमें दो चीजें मैं साथ साथ करूंगा। आज आप देखिए जो अच्छे घर में जो पढ़े खाए पिए घर के बच्चे होते हैं वहाँ माँ बाप ये कहते हैं नहीं नहीं पढ़ाई करो तभी तो तुम गूगल में नौकरी मिल पाएगी, पढ़ाई करो तभी तुम हार्वर्ड जा पाओगे। लेकिन उसके पास तो गरीब के पास खोने को कुछ है ही नहीं। तो वो जो कहते हैं कि अच्छा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा कर लिया तो बैलगाड़ी दिलवा सकती, जैसे मीराबाई चानू ने सोचा या रानी रामपाल ने सोचा कि मैं घर खरीद के अपने माँ बाप को दे सकती हूँ। तो ये चीजें जब आती हैं एंड दैट इज वेयर पेरेंट्स का रोल आता है। पेरेंट्स का रोल आता है अगर वो सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं माना जाता, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ, क्योंकि इसके लिए सरकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो एक्स स्पोर्ट्समैन है उनकी किस तरह से मदद की जाए, एक्स स्पोर्ट्समैन है उनकी पेंशन का कैसे हिसाब किताब किया जाए, एक्स स्पोर्ट्समैन है अगर उनको चोट लग जाए तो उनको मेडिकल सपोर्ट कैसे दिया जाए। तो ये चीज़ें जब आने लगेंगी तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है स्पोर्ट्समैन के मर्द के अंदर की आप कि मैं मुझे कुछ करना है, दूसरा माँ बाप का उसको जो है सपोर्ट, और सपोर्ट तब आएगा जब उनको लगेगा कि मेरे, इसमें आपको एक बहुत उदाहरण देता हूँ। गैरी, आपने गैरी कैस्परोव का नाम सुना है। उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो चेस प्लेयर बने, लेकिन उसने इंसिस्ट किया और उसके फिर माँ बाप ने उसको सपोर्ट किया, इसलिए वो वर्ल्ड का एक सबसे ऐसा लंबा लॉन्गेस्ट चेस चैंपियन रहा। तो ये जो माँ बाप का रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी का आप देखिए, घर के बाहर वो निकलते हैं तो वो बच्चे कहेंगे मैंने सुना था कि सचिन भी जब अपना वो प्रोफेसर क्वालिटी से निकलता था लोग हंसते थे शुरू में कि अरे क्या है बच्चा ये, प्रोफेसर साहब आपका बेटा है पढ़ाई वढ़ाई कराओ, कहाँ आप तो खुद पढ़े लिखे और इसको कहाँ ये कट्टू बना रहे हो। तो धोनी को भी इसी तरह उसके माँ बाप ने बोला, लेकिन उनके अंदर की जो फायर थी वो एक जो होनी चाहिए फायर इसके अंदर स्पोर्ट्समैन में होनी चाहिए। माँ बाप को सपोर्ट एंड सोसाइटी को, स्पोर्ट्समैन को ये नहीं कि आज के दिन बस लोग बैठ के टीवी पे तालियां बजा रहे हैं, सपोर्ट हमको करना चाहिए ना। जो चौथा प्रश्न आपने पूछा कि 5 चीजें क्या होनी चाहिए, मेरे ख्याल में पहली चीज जो स्पोर्ट्स के लिए सबसे जरूरी है वो ये है कि इंडिविजुअल को सही समय पे हम लोग पहचाने। तो जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही डीप होना चाहिए। इसमें एक उदाहरण देता हूँ, जब ईस्ट जर्मनी जैसा छोटा सा देश था, ईस्ट जर्मनी, वहाँ 5,000 रोइंग के क्लब थे, 5,000। और इंडिया जो उसका कम से कम 100 गुना बड़ा देश था, उस वक्त हमारे यहाँ 5 या 6 क्लब थे। आप सोच लो कि वो 5-6 क्लब में वो कितने लड़के होंगे, और सब अंग्रेजी बोलने वाले या अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले, गांव से नहीं। जब तक कपिल देव और धोनी जैसे क्रिकेट में है, क्रिकेट का रिवोल्यूशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन तभी हुआ। तो ये चीज एक बहुत जरूरी है कि डीप सिलेक्शन, जिसमें खेलो इंडिया मूवमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो है दूसरा दूसरा इसका जो है जो सिलेक्शन प्रोसेस का जो है इसका बहुत साइंटिफिक होना चाहिए, जिसमें कि जो टीम हो उसमें एक स्पोर्ट्स मेडिसिन वाला होना चाहिए, एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। मैं एक लड़के को जानता हूँ, नेगी करके मेरे साथ कन्वेइंग का था लड़का, वो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन जहाँ कोई बढ़िया बड़ी इवेंट आती थी वो एकदम से कोलैप्स हो जाता था। तो अगर उसमें लड़के में वो नहीं है तो उसको सिलेक्शन करने का कोई फायदा नहीं है। तो दूसरी चीज जो जो टीम का सिलेक्शन और सिलेक्शन के लिए वो बहुत जरूरी है। तीसरा, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भारतवर्ष में आज 100 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्ल्ड क्लास है, लेकिन हमको चाहिए ग्राउंड लेवल पे, हर आरडब्ल्यूए में, हर सोसाइटी में, हर गांव में फुटबॉल का ग्राउंड। आज हम बहुत सारे स्कूल्स ऐसे जानते हैं कि जहाँ नहीं है, तो वो सोसाइटी वो होना चाहिए
कि शहर में कि अगर मान लीजिए कि अगर स्कूल 10 स्कूल हैं, उनके ऊपर एक बढ़िया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिया जाए, तो एक मतलब 10,000 स्पोर्ट्स स्टेडियम इसमें बनने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जितने ज्यादा ये प्रोलिफरेशन होगा उतने नए नए बच्चे उसमें आएंगे। नंबर 3। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन जो इसका हो वो बहुत ही टॉप क्लास होना चाहिए। आज की फेडरेशन आप देखिए, सिर्फ एक फेडरेशन है, बीसीसीआई, सौरभ गांगुली जो खुद कैप्टन थे, तो जब उनके वो क्रिकेट के बारे में जानते इसलिए वहां पे हैं। उसके अलावा कोई एक ऐसा है मैं नहीं जानता हूँ आईओए से लेकर नीचे तक कि जिसमें कि स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स को मैनेज कर रहे हैं। वो लोग मैनेज कर रहे हैं जो पावर ब्रोकर्स हैं। सारे स्पोर्ट्स की ये हालत है। और क्योंकि इसमें फंड्स बहुत आ रहे हैं, आप समझ लीजिए कि जो 8-9-10 में 700 करोड़ का बजट था स्पोर्ट्स का, आज की तारीख में 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। तो ये फेडरेशन, अच्छा पहले क्या था, साई को ज्यादा जाता था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, अब वो फेडरेशन को जाने लगा है इलीट स्पोर्ट्स के लिए। 47% उनको जा रहा है। तो वो चीज बंद होनी चाहिए, जितना बेसिक का होगा उतना अच्छा होगा। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ग्रोथ, साई एक एपेक्स बॉडी है, साई के नीचे, और इसके दूसरी जो है एमेच्योर आईओए, आईओए के नीचे स्टेट आईओ ओलंपिक एसोसिएशन, और साई के नीचे साई सेंटर्स हैं। इनके थ्रू बच्चे निकल के आने चाहिए। स्कूल्स में स्पोर्ट्स कंपलसरी होना चाहिए कि आपको प्रमोशन, मतलब ये ऑडिट क्रेडिट नहीं हो, ये होना चाहिए ऑडिट कोर्स, लेकिन इसके पास किए बगैर आप निकल नहीं सकते। आरबी को डीपली इन्वॉल्व करना चाहिए। 5वां लास्ट पॉइंट, फंडिंग। फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश में फंड की बहुत कमी होती है। तो इसमें जो फंडिंग जितनी ज़्यादा होगी, आप यकीन नहीं मानोगे कि जो जो जीडीपी का यूरोप जो अमेरिका में 0.67% पर 100 मिलियन पर 100 बिलियन जीडीपी के ऊपर 0.67 वो खर्चा करते हैं स्पोर्ट्स पे। एंड इंग्लैंड, यूके 2.5 खर्चा करता है, इंडिया 0.03 पर 100 बिलियन जीडीपी के ऊपर खर्चा करता है स्पोर्ट्स पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग। We have to keep exposing not only our sportsmen, our coaches also abroad, so that they keep acquiring. मेरी जो नॉलेज आई है वो सबसे ज्यादा नॉर्मन, ये एक नील थॉर्ड नेल्सन इंस्टीट्यूट थी इटली में, जहाँ मुझे ट्रेनिंग मिली, और बीजिंग में मैंने ट्रेनिंग की थी। तो वहाँ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है। तो ये जो है, और ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये 6 चीजें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। जनित चतुर्वेदी सर, आपसे इस विषय के ऊपर चर्चा और लंबी करने का दिल करता है, लेकिन हमारे पास समय की कमी है और अभी हमारा समय खत्म हो गया है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी एक लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स। उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे रिमार्क लिखे हुए हैं, जिसमें से एक है राजेश खिलाड़ी। उन्होंने बहुत बढ़िया कमेंट्स दी हुई है, जिसमें वो बात कर रहे हैं कि जो लोअर एंड ऑफ सोसाइटी होते हैं, उनके पास डाइट की कमी होती है, रिसोर्सेज की कमी होती है, जैसे एग्जांपल रानी रामपाल की थी। तो मैं इसमें मेरा एक सुझाव यही है कि कुछ स्पोर्ट्स है वो हाई कॉस्ट स्पोर्ट है, टेनिस है या बैडमिंटन है। कुछ है लो कॉस्ट, यानी कि जिसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, फुटबॉल वगैरह है जिसमें एक फुटबॉल की सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से तरीका करना पड़ेगा। तो मैं आपसे बस अभी इतना ही बोलना चाहूंगा कि एक अगले 2 मिनट में आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए कि इस पूरी सेशन के अंदर कि स्पोर्ट्स और देश का भवितव्य किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। एंड देन आई विल कंक्लूड द सेशन बाय थैंकिंग यू। जनरल चतुर्वेदी, फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स। देखिए हेमंत जी, जो सबसे जरूरी चीज आपने बोली, स्पोर्ट्स जो है किसी भी देश का एक बैरोमीटर होता है। इसीलिए कम्युनिज्म में का ये प्रिंसिपल है कि स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस जरूर होनी चाहिए। पहले सोवियत यूनियन करता था, आज वो चाइना वो चीज कर रहा है। तो स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस जो है, इट बिल्ड्स यू एज अ ह्यूमन बीइंग, इट बिल्ड्स यू। सेबेस्टियन को लाइव एग्जांपल है कि उन्होंने, इंग्लैंड ने उसको बनाया और उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो स्पोर्ट्स जो है इट बिल्ड्स। और आज देखिए हॉकी में या क्रिकेट में कोई ये नहीं कहता मोहम्मद सिराज का धर्म क्या है और धोनी का धर्म क्या है। वो सारे क्रिकेट हमको सबसे बड़ा यूनिफायर इंडिया में है। स्पोर्ट्स सबसे बड़ा आज जो रवि दहिया है वो पूरे देश का हीरो है। तो ये स्पोर्ट्स एक यूनिफाइंग, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए। आप देखिए भारतवर्ष में मराठी भी है, कोई यूपीआईट है, कोई यूपी का भैया है, कोई बिहारी है, लेकिन
जब स्पोर्ट्स आता है तो सब वो हिंदुस्तानी है। तो अगर हमको एक हिंदुस्तान का कल्चर देना है तो हमको स्पोर्ट्स पे जोर देना होगा, नंबर 1। नंबर 2, सरकार को जो लोअर एस्टेट ऑफ सोसाइटी उस पर बहुत जोर देना चाहिए, क्योंकि जितना डीप होता जाए, गांव में जाएंगे, गांव के हमारे जो इंडियन स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी है, खो खो है, चक्करदन है, इन पे अगर जोर दिया जाएगा तो इस पर बहुत होगा। और स्पोर्ट्स का कल्चर जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। मैं इसमें एक अटल जी की कविता से मैं अपना समाप्त करना चाहूँगा, और वो मेरे जीवन का तो एक, जिसको कहा जाए कि मूल मंत्र है, हार नहीं मानूंगा। मतलब कितने मुश्किल आ जाए, हार नहीं, क्योंकि जो जिसने हार जीत मन के अंदर है। तो कल जैसे बेल्जियम से मन के अंदर हम हारे, तब हारे नहीं, तो हारे नहीं थे। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, इसका मतलब हर दिन एक नई लड़ाई है आपका। इसका मतलब एटीट्यूड पे है। जितना एटीट्यूड पॉजिटिव होगा उतना आप जो है लड़ने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि कोई सिचुएशन टेम्पलेट सोल्यूशंस नहीं है कि जो साइना नेहवाल के साथ जरूरी था वही पीवी सिंधु के साथ जरूरी था, जैसा सचिन तेंदुलकर था वही सहवाग है। नो सॉरी, हर स्पोर्ट्समैन एक अलग है। तो हार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता बिठाता हूँ, दैट द सैंड्स ऑफ टाइम। इसका मतलब आई एम ओपन टू आइडियाज। अगर नए नए आइडियाज आएंगे तो हम उतना इंप्रूव कर जाएंगे। काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ। दैट मीन्स एटीट्यूड पॉजिटिव है कि मतलब हर हार में हम जीत की तलाश करें, हर क्लैमिटी में एक अपॉर्चुनिटी को देखें। हमें बहुत अच्छा लगा जब लवलीना बरगोइन ने बोला कि ठीक है ब्रॉन्ज मिल गया, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मेरा ये एम नहीं था और मेरा ये एम है भी नहीं। तो आज से वो कोशिश करने लगेगी गोल्ड के लिए अगले साल। और अगर आप जैसे वो शाहरुख खान की पिक्चर थी ना कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो कायनात जुड़ जाती है तुमको मिलाने के लिए, तो वही चीज होगी अगर हम लोग शिद्दत से काम करें। और आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद जनरल चतुर्वेदी। प्योरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम वी हैव टू फिनिश आवर टॉक टुडे, बट आपसे बातचीत करने से एक चीज सामने आती है कि स्पोर्टिंग कल्चर एक देश को महान बनाने में जरूर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखता है। स्पोर्टिंग कल्चर हमें फाइटिंग स्पिरिट सिखाता है, स्पोर्टिंग कल्चर हमें टीम स्पिरिट सिखाता है, स्पोर्टिंग कल्चर ये दिखाता है कि टिल लास्ट मिनट नो बैटल इज लॉस्ट। जैसे विनय दहिया ने लास्ट मिनट में जो कजाकिस्तान का पहलवान था उसको चित कर दिया। हमारी हॉकी टीम ने लास्ट मिनट में गोल मारा जिससे हम जीत गए। तो मेरे ख्याल से आज हमारा देश ये चाइनीज वायरस और कोरोना के पैंडेमिक के थ्रू जा रहा है, तो मेरे ख्याल से देश का फाइटिंग स्पिरिट, देश की एक साथ टीम के मुताबिक काम करना, ये अगर हम क्वालिटी स्पोर्ट्स से ले सकते हैं, खुद को फिजिकली फिट रख सकते हैं, खुद को मेंटली फिट कर सकते हैं, तो इसकी मदद से हमारी देश को अलग अलग फील्ड में जहां जहां पर हम है वर्ल्ड क्लास बनाने में हम मदद कर सकते हैं। General Chaturvedi, thank you very much for coming on this show and telling our viewers your views on how the Indian sports is prospering now, what is doing presently, and what we should do in the future. Thank you very much for all your expert comments. And thank you for inviting me. It's very kind of you, and I enjoyed every moment of it. Thank you. And I'll say गालिब का एक बहुत बढ़िया शेर आपको सुनाता हूँ। मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त हूँ तो फिर आने से। थैंक यू, जय हिंद। Thank you and Jai Hind. Thank you.